Hello, everyone. I hope you are doing well, you're fit and fine, and you're preparing well for your interviews, your placements, and season. And keep practicing, keep working hard. You will achieve success. Definitely, यार success जरूर मिलेगी. Just हार्ड वर्क करते रहो. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट? तो बस करते रहो and you will see results soon. You are giving contest, you are on a right path. This is a beautiful problem. Beautiful. Like this is one of the few problems which I'm not able to make hard to easy or medium. I'm really sorry for guys. This is really an interesting problem. I also took time to try to understand it completely. It's a very interesting problem. We'll try to see the entire intuition. This you can take as a learning problem. See, some problems are for learning purpose also, right? This is for learning purpose. That understand this, and I will tell you the beauty of this question that you have to solve in this way only. You cannot do any other way. Okay, so okay, let's try to read the problem, that what are the topics can we reduce, and whatever at max we can reduce, at least at that stage we should be there, right? So we are given with three integers n, l, and r. A zigzag array of length n is defined as each element lies in the range l to r. Okay, no two adjacent elements are equal. Okay, no three consecutive elements form a strictly increasing or strictly decreasing sequence. Okay, return the total number of valid zigzag arrays. Since the answer may be large, return it modulo 10 power minus 7 and all. Okay, ठीक है यार. अब ये चीज सुन के तुमको क्या समझ में आता है कि यार अपन को कुछ तो एल से आर के बीच में रेंज दे रखा है. ठीक है, एक चीज हो गई. दूसरा दिमाग में इन्होंने लगा रखा है कि यार ओके, देयर आर थ्री कंसेक्यूटिव, वो नहीं होने चाहिए, थ्री कंसेक्यूटिव की कंडीशन है, राइट? थ्री कंसेक्यूटिव कंडीशन इज देयर. एंड वन मोर इज एडिसेंट, सेम भी नहीं होना चाहिए, एडिसेंट नॉट सेम. ओके यार. So this we understood. Okay, this is this three consecutive edges are not same L and R. So the first thought that should come to your mind is okay, you want to count something. Okay, so अगर count करना होता है ना, so there are only two three approaches that should come to your mind. Okay, firstly, this may be a PNC thing. I will also explain these type of concept in my previous videos also. And मतलब एक मैं अच्छा प्रॉब्लम का लिंक तुमको डालूंगा डिस्क्रिप्शन में. डू चेक इट आउट. दैट्स आल्सो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट हाउ इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. ओके, तो पीएनसी हो गया या कुछ इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चंस हो गए, ये तो डीपी लगता है. ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी है अगर इस तरह के कोई पॉसिबिलिटी कोई क्वेश्चन आ रहा है. अब पीएनसी थोड़ा ना मुश्किल होता है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में पीएनसी भी लग जाता है. बट हियर डीपी इज मोर इंट्यूटिव. व्हाई? क्योंकि why? Because there three consecutive condition is there, addition not same condition is there, counting condition is there, else RS condition is there. So DP make much more sense here. Okay, ठीक है. So a DP intuitive idea should come to you when you practice more problems, right? You're able to crack till here as well, that okay, DP is there, right? States we can make. But now let's try to think about the states. What we can state we can make. So one state we can make the index. Okay, one we have to make the previous also, previous number. क्योंकि एडिशन नॉट सेम होना चाहिए, राइट? लास्ट एलिमेंट के अंदर कंसेक्यूटिव के लिए भी अपन को चाहिए होगा, तो कुछ ना कुछ प्रीवियस नंबर की इंफॉर्मेशन भी चाहिए. एंड देन हर के लिए एल से आर में पॉसिबिलिटी भी है, हर से एल से आर में पॉसिबिलिटी भी है. एल से आर का एक रेंज का भी हो जाएगा. इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, if you write it recursively, it would be n into n in n of n cube solution. And if you see the constraint, if you see the constraints of the problem, uh, you will notice that oh, there is 2000 is there, right? Everyone. So n cube won't work. At max n square will work. And this is one of the problems that that tells you to write the tabulation code. And I've also made a video that why you should learn tabulation code and how to write step by step manner the tabulation code. Okay, and this is the same approach I will follow, and it's a very beautiful problem. It bound to do that because I already told one drawback of recursion DP thing, that you cannot do an optimization here, and you have to do some optimizations here because n cube solution what gonna work. To understand this solution, that what we gonna do is that let's try to keep a index. Okay, let's try to keep an index and let's try to fill every number with some values from L to R. Okay, and then we have to maintain the previous number also. So obviously we won't fill the value by checking whether it is a previous number or not. The current number is previous number or not. We'll check that. And L to R also we have to check. So means that we have to run a loop as well.
right? And index and price. So n cube is there, right? And you also gonna have to keep the count variable of consecutive, something like that, right? It is increasing or not decreasing. So there are too many constraints are there, right? So it will be not very feasible to solve this using that method. We will use a similar approach, but in a tabulation format. Okay. So let's try to think about the states, whatever we can make it. I will make a very interesting DP. See, this I again told you, it's not very intuitive. But if you try to think about, okay, I've wrote the solution. Now try to understand that. That's how you're gonna learn. Okay, so what I gonna do? You understand that 3D won't work. Let's say to make a 2D DP. The DP I make is there are two DP sets I make. Okay, up DP and down DP. Okay, up is there and it is like I, comma x, and there is down I, comma x, and try to understand the definitions. Number of arrays of length I, ending at एलिमेंट x, एंड लास्ट जो है उसका वो इंक्रीजिंग है, मतलब जो लास्ट स्टेप अपन ने किया है एंड द लास्ट स्टेप इज इंक्रीजिंग. पहले मैं लेट मी जस्ट राइट द डीपी थिंग्स एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट हाउ इट कम्स टू योर माइंड एंड कैसे आएगा, राइट? एंड दिस इज अ सिमिलर थिंग. नंबर ऑफ एरेज ऑफ लेंथ I ending at element x, last step decreasing. Okay, ठीक है यार. तो अब लेट्स से थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि if there is an element x then is element y, right? Now what is the possibility? अब you have made it increasing, एक और increasing तो हो नहीं सकता, तो ये decreasing होगा, right? या फिर इनिशियली कुछ decreasing हो जाता तो ये increasing हो जाएगा, right? यही दो possibility. This is case one and this is case two. These are the only two possibilities available to you. Okay, firstly try to understand that, okay, there are only two possibilities are available. Okay yaar. And then we have to try to do that. So this, you can say this is a down condition, the last step is down and here's the last step is up. Okay, up or you can say increasing or down. Okay, यहाँ तक सबको समझ में आता है आई गेस, राइट? यहाँ तक हमको समझ में आया कि यार कुछ कुछ ऐसा है, कुछ और कुछ अपन ने ये लिखा है, क्योंकि लेंथ अब तुमको समझ भी आ रहा होगा यार, कुछ कुछ तो है. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं तुमको बताता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन तुमको करनी होगी. अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एल से आर तुमको रेंज दे रखी है ना, ये बस बहलाने के लिए दे रखी है, फुसलाने के लिए दे रखी है. क्या मतलब है इसका? इससे इसको अगर मैं 0 to r-l+1 कर लूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या यार? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए, राइट? अब वो तुम 0 से r-l+1 में ले लो या एल से आर की रेंज में ले लो, दोनों मतलब ही सेम है. व्हाई? बिकॉज वी आर जस्ट काउंटिंग द ऑर्डर. ओनली ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट. दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज इम्पोर्टेंट. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल कि मैंने क्या किया, एल टू आर को स्लाइटली ट्रांसफॉर्म कर दिया r-l+1. इस तरीके से मैं चीजों कर रहा हूँ. अब मेरे से चीजें और आसान हो गई, राइट? जो एंडिंग वाली चीज है ना, अब मुझे एल से आर में नहीं करना पड़ेगा. आई हैव टू डू फ्रॉम 0 to r-l+1. ठीक है, अब कुछ कुछ समझ में. अब अपन थोड़ा सा बेस केस के बारे में चलते हैं कि अपन बेस केस क्या लिख सकते हैं यार. बेस केस क्या होगा? बेस केस क्या है? बेस केस दो एलिमेंट्स हैं, लेट्स से अपने पास दो ही एलिमेंट्स हैं, तो बताओ क्या होगा बेस केस. दो एलिमेंट्स हैं अपने पास, तो इफ x इज लेस देन y तो बताओ क्या है लास्ट स्टेप, क्या हुआ लास्ट स्टेप, क्या हुआ? दो ही एलिमेंट्स हैं, अपना कह सकते हैं अप ऑफ टू ऑफ, यू कैन से whatever the ending element is y should be plus plus, right? Similarly you can say that if x is greater than y, this is the opposite condition, the down of that length 2, whatever sub array you can say that, or you can say the array you can say that, and y should be plus plus. ठीक है, ये दो लेंथ का समझ में आ गया, राइट? टू लेंथ का जो सब अपना एरे अपन ने बनाया है वो एंडिंग एट y है, एंड देन वो लास्ट स्टेप डिक्रीजिंग था कि इंक्रीजिंग था, दो ही है, तो ये इसी से आंसर आ जाएगा.
ठीक है। अब 3 से हमको बिल्ड करना चालू करना है, तो हमको थोड़ी ट्रांजिशंस को समझना पड़ेगा। थोड़ी ट्रांजिशंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशंस। ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यार ये, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू राइट, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड बट बहुत सारे प्रॉब्लम तुम्हारे क्लियर होंगे अगर ये थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, राइट। अब ट्रांजिशन क्या हो सकता है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अब है ना, कहाँ से होता है ट्रांजिशन? अपने स्टेट्स क्या बना रखी है अपन? एक तो लेंथ बना रखी है आई, और अपन ने एंडिंग एलिमेंट बना रखा है वाई, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास दो अलग अलग चीजें हैं, अपन पहले अप का डिस्कस करते हैं कि लास्ट स्टेप है ना, अपन ऐप बना लेते हैं, बना लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी जो लास्ट स्टेप हुआ है वो ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। यहाँ तक अपन को कुछ नहीं पता है। अब यहाँ तक अगर अपन को कुछ नहीं पता, ये बताओ, ये लेंथ i-1 होगी? अभी करंटली लेंथ अगर आई है, तो ये पिछली वाली लेंथ i-1 होगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अप ऑफ i कॉमा y इज इक्वल्स टू सम ऑफ, अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ से अगर ये अप था, लास्ट स्टेप अप था, तो बताओ सेकंड लास्ट स्टेप क्या होगा? सेकंड लास्ट स्टेप डाउन होगा यार। यू कैन से दैट सम ऑफ ऑल डाउन i-1 लेंथ के ending at some index x where x is less than y. Did you get that? Why? Why this is there? देखो i-1 लेंथ तो समझ में आ गया होगा कि एक लेंथ कम कर लिया, क्योंकि अभी करंटली अपन ने i लेंथ है तो एक एलिमेंट कम कर लिया, अभी एक घटा लिया, तो i-1 लेंथ हो गई। और x जितने भी y से छोटे हैं, राइट, x अब y से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, अगर y से बड़ा ही हो गया तो डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग कैसे हुआ, राइट। तो ये अपन को समझ में आना चाहिए कि दिस इज आवर वन ट्रांजिशन। अब यही प्रॉब्लम थी कि इसको ऑप्टिमाइज करना इज इम्पॉसिबल इन रिकर्शन। इफ यू डू दैट यू कैन डू दैट विद हेल्प ऑफ रिकर्शन, बट n क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। Similarly, let's try to write the transition for the down as well. Okay, so you can say that down of I comma y equals to sum of all ups. Now see, लास्ट स्टेप जो था वो डाउन था, तो इसके पहले वाले सारे अप होंगे, ऑल अप्स i-1 लेंथ के ending at x, but here x should be greater than y. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यहाँ पे x ग्रेटर देन y है, यहाँ पे x लेस देन y है, राइट, ठीक है। अब नो इंटरेस्टिंग थिंग यही है, अगर अपन को ये किसी तरीके से पता चल जाएगा, देखो अब अपन आइट्रेट i में भी कर रहे हैं और अपन आइट्रेट y में भी कर रहे हैं, तो एन स्क्वायर तो यही खत्म हो गया। अब तुम इसका सम करने बैठोगे तो यार ये तो एन क्यूब हो जाएगा, ये नहीं चाहिए अपन को। दैट्स व्हाई वी कम अप विद अ प्रीफिक्स अप्रोच। प्रीफिक्स अप्रोच, व्हाट इट सेज इज, ब्यूटीफुली इट सेज दैट कि अब तुम ऐसा करो ना, तुम इसको है ना इसका प्री कंप्यूट करके रख लो, ये जो सम ऑफ ऑल डाउन कॉमा i-x है ना, जितने भी हैं वो x पे जितने भी है, y से जितने भी छोटे हैं ना, उनको बार बार सम करके रख लो अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस y वाला लूप, क्योंकि y वाले लूप के तो इंडिपेंडेंट है। अब इसको पहले ही प्रीफिक्स में सम करके रख सकते हैं, प्रीफिक्स में अगर अपन सम करके रख लेंगे तो प्रीफिक्स अप बना सकते हैं, जिसमें ये अपन समीशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन सिमिलरली डाउन, प्रीफिक्स डाउन बना सकते हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लो, कोड को देखो, अंडरस्टैंड करो कि अच्छा इस तरीके से कोड लिखा जाता है, राइट। ये तुमको थोड़ा सुपरफिशियली समझ में आया। हमने क्या किया, हमने पहले सोचा कि ओके हाउ द डीपी थंग comes because there are some consecutive things, something is there, okay we have to 10 power minus 10 plus 7 is the biggest and there's a dp, okay then we have to make something about states, अच्छा consecutive is there, okay index तो obviously बनेगा क्योंकि n लेंथ है। अब प्रॉब्लम ये है कि एल से आर में बना है, लास्ट इंडेक्स ही बनेगा, ये भी समझ में आ गया था, प्रीवियस एलिमेंट तो भी ठीक है। अब आगे एल से आर में वो लूप चलाए नहीं चलाए, तो अपन ने देखा कि एन क्यूब है तो वी वोंट वर्क, राइट ना, उसमें बहुत सारे और कंडीशन भी लगते हैं, तो बहुत दिक्कत हो रहा था। देन वी थॉट अबाउट टेबुलेशन, तो टेबुलेशन हमने बेस केस देखा कि यार दो एलिमेंट्स हैं तो ठीक है यार। फिर हमने देखा कि यार अच्छा दो एलिमेंट है, बट अब ना दो तरीके हैं, हो सकता है अपन सेम लेंथ का डिक्रीजिंग भी बनाए और सेम लेंथ का इंक्रीजिंग भी बनाए। फाइनल आंसर इफ यू थिंक अबाउट, दोनों का इंक्लूडिंग होगा, राइट, इंक्लूडिंग होगा, अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। दैट्स आल्सो मेक सेंस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज कि एंड किस पे हो रहा है ये भी डिपेंड करता है, एंड अगर वन पे हो रहा है, टू पे हो रहा है, सारी पॉसिबिलिटीज को सम करना पड़ेगा, राइट। तो अगर अगर हम फाइनल आंसर अपन के बारे में सोचे वो कैसे निकलेगा ये बताओ। अब फाइनल आंसर ये है
केयर समीशन ऑफ जो है अप भी होगा, एन लेंथ का होना चाहिए, ये तो पक्का है। पर अब वो किसी पे भी वाई पे हो सकता है, सिमिलरली प्लस, और ये दे आर इंडिपेंडेंट, and you can range y from 0 to m, and m is our r minus l plus 1. ब्यूटीफुल थिंग, राइट? मतलब क्या हुआ, लास्ट स्टेप किस पे एंड हो रहा है, वी आर समिंग अप ऑल द पॉसिबल एंड दीज आर ऑल डिसजॉइंट, दैट्स व्हाई वी कैन सम देम अप। लास्ट स्टेप अप हो रहा है, लास्ट स्टेप डाउन हो रहा है, किस पे एंड हो रहा है, दैट मैटर्स। ये अप और ये डाउन हमको कैलकुलेट करना है यहाँ से, उसके लिए हमको प्रीफिक्स भी चाहिए क्योंकि हमको ऑप्टिमाइज करना है, राइट? लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द कोड व्हिच विल गिव यू डिटेल अंडरस्टैंडिंग, ओके, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ। ओके, सो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक अप बना लिया और एक हमने डाउन बना लिया, ठीक है? एम क्या है, एम मैंने बताया वो रेंज का शिफ्टिंग है, दिस इज द शिफ्टिंग, शिफ्टिंग थिंग जो मैंने डिस्कस की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको एल से आर में बार बार परेशानी होने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे ये क्या किया, हमने यहाँ पे बेस केस लिख दिया है, नथिंग फैंसी, नथिंग फैंसी, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे जस्ट वही किया कि अगर एक्स वाई से छोटा है तो वाला एक प्लस हो जाएगा, राइट? अप ऑफ टू ऑफ वाई प्लस वन हो जाएगा, अगर सिमिलरली अगर डाउन है तो डाउन वाला प्लस हो जाएगा, राइट? कि वहां पे एंडिंग एट वाई हाउ मेनी आर देयर, सो कैन डू दैट। क्या यार यहाँ तक समझ में आया? दैट इज द सिंपल बेस, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? अभी पर इसको छोड़ दो प्रीफिक्स वाले को, think about this here, this very step is very important, that we are running a loop from I, we are running a loop of Y, that ending at Y, ending at Y, that's not important, ending which length is important, up of Y, I already told you the sum of all down of I minus x for all x less than Y। अब इसको कैसे करेंगे, देखो अगर तुम इसको देखो तो up of I Y है क्या एग्जैक्टली, विच इज इक्वल टू, अपन ने सम कह दिया है, तो अब क्या 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 हो जाएगा, सारे छोटे क्या हो जाएंगे, I minus 1 0 प्लस प्लस डाउन ऑफ I माइनस वन टिल Y माइनस वन, सारे समीशन हो जाएंगे, इन सब का समीशन कर दो, राइट? यही को अपन ने प्रीफिक्स में स्टोर कर लिया, अगर तुम इनको अच्छे से देखो तो दिस इज द प्रीफिक्स। अब यहाँ पे Y क्यों लिखा है, Y माइनस वन क्यों नहीं लिखा, एक्चुअली ये वन बेस इंडेक्सिंग, दैट्स व्हाई प्रीफिक्स को इजी करने के लिए हमने वन बेस इंडेक्सिंग बनाया, दैट्स व्हाई इट्स मेकिंग सेंस। अपन ने क्या किया यहाँ पे, प्रीफिक्स कैसे लिया, प्रीफिक्स वेरी सिंपल यार, प्रीफिक्स बनाया अपन ने कहाँ पे, अपना एंड हो रहा है उस चीज का, इसको वन बेस इंडेक्सिंग किया, प्रीफिक्स ऑफ वाई किया, एंड आई माइनस वन लेंथ तक जितने भी थे पहले वाले, जितने भी प्रीफिक्स थे उन सबका बस सम ले लिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अपन को अंदर करना पड़ता हो, और वो अंदर नहीं, हमने उसको बाहर एक इंडिपेंडेंट थिंग की तरह बाहर लूप चला दिया, राइट? दिस इज नॉट अ नेस्टेड लूप, राइट? तो ये हमने चीज की और यहाँ से अपन को प्रीफिक्स मिल। अब सिमिलरली उल्टा काम हमको करना पड़ेगा फॉर डायन ऑफ आई, कि हमको सम ऑफ ऑल आई चाहिए पर एक्स ग्रेटर चाहिए, राइट? एक्स ग्रेटर चाहिए, यहाँ पे उल्टा हो गया काम, अपन यहाँ पे ये नहीं लिख सकते प्रीफिक्स ऑफ अप, राइट? उल्टा नहीं लिख सकते, वाई? बिकॉज अब अपन को एक्स ग्रेटर देन चाहिए, यहाँ पे तो एक्स वो था, अब यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, अगर तुम देखो तो डाउन ऑफ आई और वाई, ये हो जाएगा अपना, सारे सम हो जाएंगे, अब डाउन ऑफ ना, डाउन ऑफ आई माइनस वन। अब देखो लेंथ जितनी है वो बड़ी होगी, y पे एंड हो रहा है, y प्लस वन पे एंड हो रहा है, देन अप ऑफ i माइनस वन y प्लस टू पे एंड हो रहा है, एंड सो ऑन टिल 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 वट एवर, अप ऑफ मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, m लेंथ तक जा सकता है, राइट? तो यहाँ तक अपना काम हो जाएगा यार, ये सारी सबको सम करना। अब इसको उल्टा तुमको आता ही है प्रीफिक्स सम निकालना, अपने टोटल में से प्रीफिक्स में y प्लस वन माइनस कर दिया, एक्चुअली y प्लस वन माइनस नहीं किया क्योंकि वो वन बेस इंडेक्सिंग है, तो केवल y ही माइनस किया है, y प्लस वन से ऑल आर इंक्लूडेड, एंड देन दैट इज डाउन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली हमने प्रीफिक्स और डाउन को भी प्लस कर रखा था, ये चीज हमने कर ली कि हमने अप ऑफ आई कैलकुलेट कर लिया, डाउन ऑफ आई कैलकुलेट, नाउ दिस विल हेल्प अस टू अचीव आवर फाइनल आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट यू विल डू at which r you are ending, try to understand l से r का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया हमने, उसको हमने 0 टू r माइनस एल वन प्लस एल पे r माइनस एल प्लस वन पे मैप कर दिया, वाई? बिकॉज इजी है, राइट? क्योंकि आपको 0 से r माइनस एल पे एक सिंपल चीज हो जाएगी, नहीं तो l से r में बार बार आप बहुत कंफ्यूज हो गए, इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि अगर उस तरीके से अपन जाए, एंड देन दिस इज द आइडिया, अपन ने आपका भी कर लिया, डाउटली दोनों डिसजॉइंट है, देयर इज नो कॉमन केसेस देयर, दैट्स व्हाई सम ऑफ देम एंड वी रिटर्न द आंसर। So I hope you understand the gist of it. Try to go through the code again. I understand it might be not very intuitive for you, but if you go through the code again, go through the video again, I am definitely sure that you will get this question and you will at least try to think next time in the similar problem, right? I've also add a good question similar to this in the description. Do check it out. And yeah, then I will see you in the next video. Bye bye.